हेलो, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ हेलो। हाँ हाँ हेलो। वेलकम मुक्ता जी। अच्छा, यस यस, हाँ थैंक यू। हाँ हाँ। और 1-2 मिनट बाद। हाँ हाँ। Welcome everybody. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Today, Scientific Temperament Day, 28th August.
Scientific Temperament Day. And a national webinar on scientific temperament and our society. Today's speaker, Mukta Davulkar, science communicator, science activist, and daughter of Narendra Davulkar, Dr. Narendra Davulkar. Welcome, Mukta Davulkar, to our virtual seminar or Thank you. Thank you. national webinar. Welcome, Mukta ji. Thank you. I would like to request our principal madam, principal of Vijayagad Jyotish Rai College, Dr. Rajyasree Neogi, to deliver the welcome address. Please, madam. Thank you, Dr. Banerjee. Good evening. First of all, on behalf of Vijayagad Jyotish Rai College, I, Dr. Rajyasree Neogi, Principal, would like to welcome today's honorable speaker, Mukta Davulkar. Welcome, madam. And we are really grateful to you. Thank you, we are really grateful to you that you agreed, you have given your kind consent to spend some time with our beloved students. This day is designated as Scientific Temper Day. It is not sufficient to designate a day, as we all of us know, that for example, Environmental Day, Women's Day, etc., Children's Day, Earth Day, but it is a matter of 365 days. But to show our honor, the designated day is very helpful to show our honor, to pay our homage in this day. This day is designated as Scientific Temperament Day in the name of Dr. Narendra Davulkar, the father of our honorable speaker, Sri Mukta Davulkar, who was an Indian doctor, social activist, rationalist, and author from Maharashtra. And he was a fighter, and he fought against superstition and ignorance. In this pandemic situation, I believe that this type of webinar will help our students a lot, because sorry, it is the problem of a webinar that it is organized from the home and someone is calling me. Anyway, sorry for the interruption. The scientific we are trying to hello. Hello. We are trying Yes, to madam. inculcate scientific temperament among our students regularly when we are in a normal life. But in this pandemic situation, I believe that it is of utmost importance to create scientific temperament among the students, not only students, among the society, because in this pandemic situation, it is evident that the ignorance and superstition is creating a much more problem than the virus to the society. It is important to inculcate scientific temper in young minds and create the right ecosystem for innovation to thrive, which would go a long way in the technological progress of the nation. So, in this perspective,
this organization of this webinar by the Department of Journalism and Mass Communication is very important, very meaningful, and very contemporary. Once again, I would like to welcome all the participants and today's honorable speaker, Mukta Davulkar, to spend some time. And definitely the session will be very interesting, very interactive, and our students will be very much benefited from your valuable speech. Thank you once again. Thank you, madam, for your valuable speech and welcome address. আমরা আমাদের মধ্যে আমরা আজকে ন্যাশনাল ওয়েবিনারে মুক্তা দাভেলকার আমাদের মধ্যে হিন্দিতে মূলত আলোচনা করবেন। আমি বলেছি কারণ আমাদের মূলটা প্রাণ থেকে বলার জন্য, ইংলিশেও বলবেন। কিন্তু আমাদের এখানে বহু ছাত্রছাত্রী আছে, বহু মানুষজন আছেন, অনেকেই জানেন নরেন্দ্র দাভেলকরের কথা, অনেকেই জানেন বিজ্ঞান মনস্কতার জন্য যে দিনটি স্থির হয়েছে তার কথা। কিন্তু তবু যারা নতুন তাদের উদ্দেশ্যে জানাই যে বিজ্ঞান মানসিকতা বা বিজ্ঞান মনস্কতা বা সায়েন্টিফিক টেম্পারমেন্ট, এই কথাটা আমরা ডিসকভারি অফ ইন্ডিয়াতে জওহরলাল নেহরুর লেখার মধ্যে প্রথম পাই। পরে সংবিধানের 51H ধারায় আমরা দেখেছি, 51H এর এই ধারাতে সংবিধানে সায়েন্টিফিক টেম্পারমেন্টের কথা বলা হয়েছে। আমাদের যেমন মৌলিক অধিকারগুলোর নানা কাজের কথা, শিক্ষার অধিকার, নানার কথার কথা বলা হয়েছে, সেরকম ভাবে সায়েন্টিফিক টেম্পারমেন্টের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু আমরা কতটা বিজ্ঞান মনস্ক বা আমরা কতটা সায়েন্টিফিক টেম্পারমেন্ট নিয়ে চলি, বিজ্ঞানের মেজাজ আমাদের কতটা আছে, এ নিয়েই আজকে আলোচনা। একটু বুঝিয়ে বললে জাস্ট দু একটা কথা আমি বলে সূচনা করছি, যাতে সবাই বিষয়টার মধ্যে ঢুকতে পারে, বিষয়টার মধ্যে আসতে পারে। নরেন্দ্র দাভেলকর এমন একজন মানুষ যিনি শুধু মহারাষ্ট্র নয়, গোটা পৃথিবীর বিজ্ঞান মনস্কতার আন্দোলনকে জাগিয়ে তুলেছিলেন। ভারতবর্ষ তো বটেই, পৃথিবীর এমনকি আশেপাশের পার্শ্ববর্তী দেশগুলোতেও কিন্তু বিজ্ঞান আন্দোলনে জাগ্রত হয়েছিল ডাক্তার নরেন্দ্র দাভেলকরের অবদানের জন্য। আমরা সে কথাগুলো জানবো, আমরা তার মেয়ে আমাদের উপস্থিত, আমরা তার কাছ থেকে শুনবো সব কথা। বিজ্ঞান মনস্কতার একটা ছোট্ট উদাহরণ দিই। যেমন ধরা যাক যে আমরা দেখেছিলাম যে 95 সাল, তারও পরে 2000 সাল, মাঝে মাঝেই আমরা পাথরের মূর্তিকে দুধ খাওয়ানোর জন্য যাই। গণেশের দুধ খাওয়ানোর জন্য বিরাট একটা বিপুল পরিমাণে দুধ নষ্ট হয়েছিল, অথচ বাচ্চা বাচ্চা ছেলে মেয়ে যারা দুধ পায় না তাদেরকে দুধ না খাইয়ে কোন যুক্তিতে মানুষ, শিক্ষিত মানুষ যারা সারফেস টেনশন এবং ক্যাপিলারি অ্যাকশন জানতেন, তরলের পৃষ্ঠটান এবং সান্দ্রতার কথা জানতেন, বিজ্ঞানের ফিজিক্স পড়া মানুষ, তারাও কিন্তু সেই দুধ খাওয়াতে ছুটেছিলেন গণেশকে। এইটা কিন্তু বিজ্ঞান জানা মানুষও কতটা বিজ্ঞান মনস্ক না হন, কতটা কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হন, অন্ধ কুসংস্কারের বশে তারা এই কাজগুলো করে থাকেন, যুক্তিবাদের ধার ধারে না, সে নিয়েই আজকে আলোচনা। আজকে সেই নিয়েই আলোচনা এবং আমরা 1 ঘন্টা কাটাবো সে নিয়েই। আমার আজকে মডারেটর, I would like to request to moderate the program Bokul Simani, Professor, our Department of Journalism and Mass Communication. Today's webinar organized by Department of Journalism and Mass Communication, Science Innovation Center, Creative Science Center, Kolkata, and Octave and Science in Action. Bokul, please. Professor Bokul Simani. Thank you, Dr. Banerjee. Hello, everyone, and welcome to today's session. Thank you all for finding time and visiting today's national webinar. As Dr. Banerjee said, our topic today is scientific temperament and our society, and the speaker is activist and science communicator Mukta Davulkar. Yes, today is August 20, the death anniversary of social activist and rationalist Narendra Davulkar. Padma Shri Davulkar worked tirelessly to attempt to spread a scientific temper and the idea of rationalism. In 1989, he founded and became president of the Maharashtra Andhashraddha Nirmulan Samiti, MANS, the committee to eradicate superstition in Maharashtra. Under his supervision, Mans drafted the Anti-Jadoo Chona Bill, that is Anti-Superstition and Black Magic Ordinance. To carry his idea forward, the All India People Science Network, a network of over 40 people science movement, has declared August 20, that is today, as the National Scientific Temper Day. The creation of scientific temper is not mastering of science and technology or developing a highly industrial society, but its inculcation in our society would help our people
becoming more rational and objective. Scientific temper teaches us how to question, but the freedom to question is equally crucial. On National Scientific Temper Day, perhaps we Indians will take the opportunity to question this attitude as we ponder the theme set for the event, Ask Why. So today we have with us rationalist Padma Shri Narendra Davulkar's daughter, Mukta Davulkar. She is an educationalist, works at uprooting superstitious belief at the childhood level. Her organization has a scientific temperament cultivating cell and trains teachers to conduct these classes in schools. The idea is to have kids start a conversation with their parents about superstitious practices. वेलकम यू मैम। मैम फिर से मैं आपका स्वागत करती हूँ इस कार्यक्रम में और आपका आभार व्यक्त करना चाहती हूँ हमारे साथ जुड़ने के लिए, खासकर नेशनल साइंटिफिक टेम्परामेंट डे के अवसर पर। वेलकम यू मैम। धन्यवाद। फर्स्टली मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप बच्चों के साथ काम करती हैं और आपकी आवाज बहुत कम आ रही है मैम। जी, आप क्या मैं ऑडिबल हूँ? हाँ, जरा जोर से बोलिए। हाँ जी मैम, आप बच्चों के साथ काम करती है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन काम करती है सुपरस्टिशियस प्रैक्टिस को इरेडिकेट करने के लिए। तो आप जिस तरीके से काम करती है और आपके काम का जो उद्देश्य है उसको लेके अगर आप कुछ बोले और उसके बाद अगर हम आज के जो टॉपिक है साइंटिफिक टेम्परामेंट डे को लेके, फॉस्टरिंग साइंटिफिक टेम्परामेंट इन आवर सोसाइटी, उस पे जाए तो बहुत ही अच्छी रहेगी। तो प्लीज ओवर टू यू मैम। क्या आप क्या सजेस्ट करोगे, मैं कितनी देर बोलूं इस मुद्दे पे, और क्या हमारे सवाल जवाब होंगे या मैं भाषण करूंगी, क्या सोचा है आप लोगों ने? जी मैम, पहले तो आपसे मैं हम लोग सभी लोग सुनने के लिए बहुत ही इंटरेस्टेड है कि व्हाट द वे हाउ द वे यू डू इट, एंड एट द लास्ट 15 minutes we'll have our question answer session. If anybody is having question during the presentation, they should write it in our chat window and we'll have the question answer session at the end of your speech. Okay, so how much time is available now, as it is 9 now? Yeah, we are having 40 minutes with us to listen to you, ma'am. Then we'll go for the question answer round. Yes. All right. Over to you, ma'am. Thank you, ma'am. डॉक्टर अर्नब कुमार बैनर्जी ने मुझसे कांटेक्ट किया और ये कार्यक्रम के बारे में उन्होंने बोला, इनवाइट किया। तो मैंने सोचा कि महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति महाराष्ट्र में तो बिल्कुल काम करती है, पर ये जो मुद्दा पूरे देश में उठाया जा रहा है और अलग अलग राज्यों से जुड़ना, ये कम्युनिकेशन हो पाना, ये बहुत ज़रूरी है कि हम महाराष्ट्र में क्या करते हैं, आप बंगाल में क्या करते हो, और ये विचारों का आदान प्रदान इस विषय को लेके मेरे लिए बहुत अहम बात है। इसीलिए हम सब आज ये संवाद कर रहे हैं और मैं ये देख के भी खुश हूँ कि रात को 9 बजे है, फिर भी आप 118 लोग मुझे यहाँ दिख रहे हैं स्क्रीन पे। तो first of all, I am very thankful to you for inviting me amongst you and for sparing some time to listen to me. तो जैसे आपने बोला, मैं हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो है महाराष्ट्र अंधविश्वास उन्मूलन समिति, वो ऑर्गेनाइजेशन के जो अनुभव रहे हैं उनके बारे में बात करूंगी पहले 40 मिनट। जैसे आपने बोला कि बच्चों के बीच हमारा जो काम है उसके बारे में भी बोलूं, तो उसके बारे में भी मैं ज़रूर बोलूँगी, पर मैं ये शुरू से ही कहना चाहूँगी कि महाराष्ट्र अंधविश्वास निर्मूलन समिति जो है उसके कई सारे अंग है काम के। बच्चों के साथ होने वाला काम ये एक अंग है उस काम का। और ये जो आपने बोला इंट्रोडक्शन में कि 1989 में इस काम की शुरुआत डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर ने की, ये बिल्कुल सही बात है। और अभी 30 साल हुए हैं कंप्लीट इस ऑर्गेनाइजेशन को। और काम की शुरुआत जब हुई तो जो सो कॉल्ड गॉडमैन रहते हैं, जो कोई मिराकल्स करते हैं, लोगों को फंसाते हैं, तो उनको एक्सपोज करने से इस काम की शुरुआत हो गई। वो जो
मिराकल्स दिखा के लोगों को उल्लू बनाते हैं, पैसे लुबाड़ते हैं, तो उनसे उनका विरोध करना ये काम की शुरुआत का एक महत्वपूर्ण अंग था। पर ये काम उसी चीज में नहीं अटका रहा। ये अंधविश्वास के कारण सामान्य जन का जो शोषण होता है उसके बारे में भी बोलता आया है। तो एक तरफ ये एक्सपोज करना, दूसरी तरफ अंधश्रद्धा या अंधविश्वास ये एक ऐसी चीज है कि जो गरीब को गरीब रखने का षड्यंत्र है। ऐसे डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर बोला करते थे कि इंसान की सबसे अहम बात कौन सी है, तो उसकी विवेक शक्ति ये सबसे अहम बात है। हम अपना दिमाग इस्तेमाल करके हमारे जीने का ढंग तय कर सकते हैं। पर अंधविश्वास हमें ये सोचने के लिए मनाही करता है। हम खुद ही ऐसा मानते हैं कि जो जैसे चलता आ रहा हो, जो जैसे बताया गया हो, उसी तरीके से उसी ढंग से जीना है। हम क्वेश्चन करना, सवाल उठाना भूल जाते हैं। तो डॉक्टर दाभोलकर और भी एक उपमा इसके लिए इस्तेमाल करते थे, वो है कि हमारे हाथों में बेड़िया है, वो बेड़िया बहुत भारी है, पर हम तो उसको इस नजरिए से देख रहे हैं कि ये शायद हमारे हाथों के फूलों के हार है या गजरे है। तो अंधविश्वास ये एक ऐसी चीज है कि जिसके हाथ पैर उससे बंधे हो, उसे वो बेड़ी नहीं लगती, उसे वो फूलों के हार लगते हैं। तो ये बहुत ही घिनौने तरीके का डिसेप्शन है जो हमें खुद को एक इंसान होने से रोकता है। एक पूरी तरीके का इंसान जो अपना खुद का दिमाग इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी की राय तय करे। तो ये काम जब शुरू हुआ तो मिराकल्स का एक्सपोजर ये बहुत बड़े पैमाने पे होता था। अब मैं जरूर ये आपसे कहना चाहूंगी कि महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने पिछले 30 सालों में सैकड़ों फेक गॉडमेन जो होते हैं, बाबा, बुआ, अम्मा, माता, उनको एक्सपोज किया है। और अभी महाराष्ट्र में ऐसे कोई बड़ा बाबा नहीं बोल सकता कि मैं मिराकल करता हूँ, क्योंकि अभी डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर के खून के बाद महाराष्ट्र में जिस चीज का अभी जिक्र हुआ, जादू टोना विरोधी कानून या एंटी ब्लैक मैजिक एक्ट, वो भी आ गया है। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है महाराष्ट्र अंधविश्वास उन्मूलन समिति, ये ऑर्गेनाइजेशन बड़ी ही सक्रिय पैमाने पे काम करती है। इसलिए आज ऐसे कोई भी नहीं कह सकता कि मैं मिराकल करता हूँ। मैं एक उदाहरण देना यहाँ चाहूंगी। 3 साल पहले महाराष्ट्र के जो सीएम रहे थे, उनकी पत्नी एक प्रोग्राम में शामिल हुई थी और वो प्रोग्राम में एक ऐसे ही गॉडमैन, सो कॉल्ड गॉडमैन ने अपनी हाथ से एक सोने की चेन निकालकर उनके हाथ में रख दी थी। तो इस बात की बहुत चर्चा हुई, मीडिया पे चर्चा हुई। महाराष्ट्र अंधविश्वास उन्मूलन समिति ने इसका निषेध किया कि कोई मिराकल दुनिया में होते नहीं है। और दूसरे दिन सीएम की पत्नी को ये बोलना पड़ा कि मैं स्वामी पे श्रद्धा रखती हूँ, पर मैं मिराकल्स पे बिलीव नहीं करती, मैं मिराकल्स में विश्वास नहीं करती और अंधविश्वास गलत है। तो ये जो पूरा महाराष्ट्र अंधविश्वास उन्मूलन समिति का ये जो पूरा प्रवास है, ये यहाँ तक आज आ गया है कि महाराष्ट्र में चमत्कार का दावा करना ये आज कानून के तहत भी नहीं हो सकता और उसे पब्लिक एक्सेप्टेंस भी नहीं है। ये जो काम था वो सिर्फ किसी चीज का विरोध करने तक लिमिटेड नहीं था। डॉक्टर दाभोलकर का जो विजन था वो एक विवेकशील समाज के निर्मिति का विजन था। ऐसा समाज जो समाज के या जीने के हर एक अंग को
विवेक की नजर से परखे। और डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर ने जिंदगी के कई सारे अंगों के साथ इस तरीके का विवेक का संवाद छेड़ा। उसके कोई उदाहरण मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी। ये उदाहरण चीज बड़ी महत्वपूर्ण है हमारे लिए, क्योंकि महाराष्ट्र अंधविश्वास उन्मूलन समिति ये थियोरटिकल चीजें बोलने वाला ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। थियोरटिकल चीजें तो कार्यकर्ता जरूर बोलते हैं, पर जो कोई इसका इसका जो कोई एम्फेसिस है वो एक्शन पे है। इट्स एन एक्शन ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसे 25 साल पहले ऐसे एक काम शुरू किया महाराष्ट्र में। जैसे बंगाल में आपके यहाँ दुर्गा पूजा रहती है, वैसे महाराष्ट्र में गणेशोत्सव रहता है। गणेश जी के आइडॉल की पूजा की जाती है और 10 दिन के बाद वो आइडॉल पानी में इमर्स किया जाता है। तो हम सब जानते हैं कि आजकल प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां होती है, वो केमिकल रंगों से रंगी हुई होती है और पानी में ये मूर्तियां विसर्जित करने से पानी का बड़े पैमाने पे प्रदूषण हो जाता है। तो 25 साल पहले महाराष्ट्र अंधविश्वास उन्मूलन समिति ने महाराष्ट्र के एक गांव से एक एक्टिविटी शुरू की कि विसर्जन के बाद आप वो जो गणेश जी का आइडॉल है वो लाइव वाटर में, यानी कोई नदी में या तालाब में ना छोड़ दे, बल्कि हिंदू धर्मशास्त्र ऐसे मानता है कि विसर्जन के बाद वो मूर्ति में प्राण नहीं रहता, तो आप विधिवत विसर्जन कर लो और बाद में वो मूर्ति आर्टिफिशियल टैंक में विसर्जित कर लो। तो पहले साल ऐसे 100 ही लोग थे कि जिन्होंने वो मूर्ति आर्टिफिशियल टैंक में विसर्जित कर दी। पर उसके बाद अभी 25 सालों बाद मानो लाखों मूर्तियां इस तरीके से विसर्जित होती है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति इसके लिए हाईकोर्ट में गई। हाईकोर्ट ने डायरेक्शंस दी गवर्नमेंट को, और अभी लोगों को कन्विंस करने का काम हमें नहीं करना पड़ता है। ये काम म्यूनिसिपालिटी, विलेज पंचायत, कॉरपोरेशंस करती है और ये लोगों ने अपना काम मान लिया है। तो समझो एक छोटी एक्टिविटी से ये शुरू हुआ और आज ये पूरे महाराष्ट्र में फैला हुआ है। उसका बहुत विरोध भी हुआ। ऐसे भी बोला गया आप सिर्फ हिंदुओं के धर्म की बात करते हो, ये सब सिखाते हो। इसका युक्तिवाद भी किया गया और करते आए हैं, इसके जवाब भी देते आए हैं। पर बहुत सारे लोगों ने ये दिल से एक्सेप्ट भी कर लिया और एक बदलाव आ गया। ये जो बदलाव है वो सिर्फ एनवायरनमेंट के बारे में कंसर्न बिहेवियर, ये बदलाव नहीं है। हम ऐसा मानते हैं, या डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर ऐसा बोलते थे कि ये जो बदलाव है वो आपको खुद सोचने के लिए मजबूर करता है। मैं मेरे त्योहार किस तरीके से मनाऊं? मेरे लिए भक्ति अहम है, पर मेरे भक्ति मनाने का तरीका मैं परंपरा ने जैसे मुझे बताया है वैसे ही एक्सेप्ट करूं, ये जरूरी नहीं है। मैं काल सुसंगत रूप से उसमें बदलाव ला सकती हूँ। अगर प्रदूषण ये इस दुनिया की बड़ी समस्या है तो शायद मैं छोटी मूर्ति बनाऊंगी, मैं घर की मिट्टी से मूर्ति बनाऊंगी, वो मैं घर में ही विसर्जित करूंगी। और ये बड़ी सोशल मूवमेंट बन गई है महाराष्ट्र में। तो ये उदाहरण मैंने विस्तार के रूप से इसलिए बताया कि इस तरीके से महाराष्ट्र अंधविश्वास उन्मूलन समिति लोगों के साथ बहुत सारी एक्टिविटीज के तौर पे जुड़ जाना पसंद करती है। और इसलिए एक तरफ जो अंधविश्वास की चीजें जता के लोगों का शोषण करते हैं उनका विरोध करना, और दूसरी तरफ ये विवेक का संवाद
लोगों के साथ छेड़ना, ये बात काम का तरीका है। ये जो आधुनिक अंधविश्वास है, जैसे कि फल ज्योतिष, आपके कॉलेज के नाम में ही ज्योतिष है, वो अलग बात है, पर ये जो फल ज्योतिष जो ऐसे मानता है कि आकाशस्थ ग्रह तारे हमारे जिंदगी की दिशा तय करते हैं, जो कि एक सरासर गलत सोच है, गलत तरीका है सोचने का। तो अंधविश्वास का ये जो नया आधुनिक रूप है, जिसमें वास्तु श्रद्धा या वास्तुशास्त्र आता है कि घर अपना इस तरीके से बनाओ, पूर्व में उसके दरवाजे रखो, पश्चिम में टॉयलेट रखो, उधर बेड रखो, ये सब चीजें बोली जाती है और लोग लाखों रुपए इस पे खर्चते हैं। मुझे पता नहीं अभी आपके यहाँ ये आया हुआ है नहीं, पर महाराष्ट्र के सिटीज में स्पेशली और सब एजुकेटेड और वेल ऑफ लोगों में इसका बहुत फैड है। तो और कोई चीजें रहती है, हाथों में अलग अलग अंगूठियां पहनना, जो अलग अलग ग्रहों की राशियों की अंगूठी हो, ऐसे बोला जाता है। तो ये जो साइंस का जार्गन इस्तेमाल करके स्यूडो साइंस फैलाया जाता है, जो अंधविश्वास साइंस के नाम पे फैलाया जाता है, उसका भी कड़वा प्रतिरोध महाराष्ट्र अंधविश्वास उन्मूलन समिति करती आई है। और अब क्या होता है कि ये जो अंधविश्वास फैलाने से जिनका फायदा होता है, ये लोग अभी मिराकल का इस्तेमाल नहीं कर सकते कानून के चलते, तो ये अब साइंस का इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। वो साइंस की जार्गन को इस तरीके से ट्विस्ट करेंगे कि सुनने वाले को लगेगा कि मैं कुछ मॉडर्न चीज कर रहा हूँ, मैं कुछ साइंटिफिक चीज कर रहा हूँ। ऐसे बीच में हमारे यहाँ बहुत फेमस हुई थी एक चीज, उसे बोलते थे मिड ब्रेन एक्टिवेशन। मिड ब्रेन एक्टिवेशन में बच्चों की आंख पे पट्टी बांधकर वो पढ़ सकते हैं, ऐसे बोला जाता था। और ये इस तरीके से पढ़ने वाला बच्चा बहुत होशियार बन गया है, ऐसे बोला जाता था। तो बिल्कुल ही ये सही बात नहीं है कि किसी के आंख पे पट्टी बांधी हो तो वो कैसे पढ़ सकता है, उसकी कोई ट्रिक्स रहती थी। तो ऐसे कई लोगों को हमने एक्सपोज किया, इस बात का विरोध किया। तो ऐसे सीखे हुए लोग इनके यहाँ जाते थे, जिनके पास पैसे हो, वो 10-10 हजार रुपए देके अपने बच्चे को उसका मिड ब्रेन शायद एक्टिवेट करवाते थे। तो ऐसी चीजें भी जो चलती आती है, उसका भी अंधविश्वास उन्मूलन समिति विरोध करती है। और जो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी है, वो विवेकशील तरीके से कैसे जी जाए, उसके बारे में भी बात करती है। जब हम लोगों को बोलते हैं कि आप अंधविश्वास का सहारा ना लें, तो हमें ये भी बोलना जरूरी है कि हमें जिंदगी में जब किसी के सहारे की जरूरत पड़े, किसी के मदद की जरूरत पड़े, तो वो मदद हम कहाँ से पाए। अंधविश्वास एक शॉक अब्सॉर्बर का काम करता है बहुत सारे लोगों के लिए। ये शॉक अब्सॉर्बर उनकी जिंदगी को ही बाद में अब्सॉर्ब कर लेता है, ये इसकी बुरी बात है। और इससे अगर लोगों को बचाना है, तो खुद के शॉक्स कैसे खुद अब्सॉर्ब करना है, ये भी उनको बताना जरूरी है। तो जिसे इमोशनल फर्स्ट एड बोलते हैं, उसके बारे में हम काम करते हैं। एक मानस मैत्र नाम का प्रकल्प है, जिसमें इमोशनल फर्स्ट एड की बात करते हैं। जिन लोगों को उससे ज्यादा जरूरत मानसोपचार की हो, उनको कैसे पहचाना जाए, उनको उस हेल्प तक कैसे लेके जाए, इस तरीके से युवाओं को प्रशिक्षित करते हैं। शादी का जो मसला है, हमारी समाज में शादी करने का एक ही ये दो तरीके हैं। जो दो तरीके वो कौन से हैं? एक तो है कि बड़े बुजुर्ग जिसके साथ शादी तय करना चाहे उसके साथ चुपचाप शादी कर लो। और इस शादी करने से तरीके में क्या होता है कि देखा जाता है, पहली अहम चीज और सबसे अहम चीज देखी जाती है, वो क्या है? कास्ट और पैसे कितने हैं। ये कोई नहीं देखता कि कंपैटिबिलिटी कितनी है, और देखता भी हो तो कोई वो लड़कों
लड़की और लड़के को अवसर नहीं देता कि ये खुद वो अनुभव करे। और दूसरा जो तरीका होता है वो होता है प्यार करके बाद में शादी करना। उस तरीके में भी एक ऐसी चीज रहती है कि कई बार लोग प्यार के साथ पूरी जिंदगी काटी जा सकेगी या नहीं, ये सोच नहीं रखते हैं। तो हम ऐसा मानते हैं कि शादी ये बड़ी जिम्मेदारी है और वो करने के लिए बहुत सारे मसलों के बारे में पहले से सोचना जरूरी है। घर में कौन काम करेगा, संबंध कैसे रहेंगे पति पत्नी के बीच, परिवारों के साथ संबंध कैसे रहेंगे, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, उनके बारे में पहले से सोचना जरूरी है। तो अगर हम युवाओं को बोलते हैं कि आप जन्म कुंडली देख के शादी मत करो, आप सिर्फ कास्ट देख के शादी मत करो, तो हमें उन्हें ये भी बोलना चाहिए कि क्या देख के शादी करो। और इस चीज का भी संवाद उनके साथ छेड़ना जरूरी है। जैसे आजकल की दुनिया में बहुत सारे पेरेंट्स बहुत वरीड रहते हैं अपने बच्चों की पढ़ाई, अपने बच्चों का बढ़ जाना उसको लेके। उसके लिए भी आपने देखा होगा कई सारे सदगुरु आजकल पेरेंटिंग के एडवाइसेस देते हैं। तो पेरेंटिंग ये एक ऐसी चीज है कि जिसके बारे में लोग जानना चाहते हैं, अपने सवाल करना चाहते हैं। तो विवेकी पालकत्व कैसे हो सकता है, विवेकी पेरेंटिंग किस तरीके से किया जा सकता है, बच्चों को मारना, बच्चों को धमकाना, ये चीजों के साथ बच्चों पे क्या गुजरती है। तो ये सारी जो चीजें हैं, जब हम बोलते हैं कि गलत तरीके से मत जियो, अंधविश्वास के साथ मत जियो, जो ज्ञान आपको प्राप्त हुआ है वो ज्ञान का जिंदगी में इस्तेमाल करके जियो। तो हमें अलग तरीकों के जीने के अलग तरीकों के बारे में भी बोलना चाहिए। तो अंधविश्वास उन्मूलन समिति ये तरीकों के बारे में भी संवाद करती है। तो ये काम महाराष्ट्र के कोने कोने में पहुंच गया है और यही कारण था कि डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर की हत्या कर दी गई, क्योंकि लोगों को ये काम में दिलचस्पी पैदा हुई थी। डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर एक ऐसी आवाज बन गए थे कि जिसका कहना समाज के युवा सुनना चाहते थे, उस पर गौर करना चाहते थे और वो सुन के अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते थे। तो ऐसी आवाज जो प्रभाव डाल सकती है, जो बदलाव ला सकती है, वो आवाज ये बड़ी ही थ्रेट पे पैमाने पे देखी गई और विचारों का विरोध विचार के जरिए करने के बजाय डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर का कत्ल हो गया। 20 अगस्त 2013 को उन पे गोलियां बरपाई गई, पर महाराष्ट्र अंधविश्वास उन्मूलन समिति के सभी कार्यकर्ताओं ने ये अपने दिल से तय किया कि किसी को मार के उसके विचार खत्म कर सकते हैं, ऐसा संदेश अगर समाज में कोई देने की कोशिश कर रहा हो तो हमें वो कोशिश नाकामयाब करने की बहुत आवश्यकता है। और सभी सामान्य कार्यकर्ता जो अपने अपने गांव में रहते थे, अपने अपने गांव में पैर गाड़ के बहुत स्ट्रांगली खड़े हो गए और हम सब ने मिलके ये काम जारी रखा है। मुझे आज आपने बुलाया है, मैं डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर की बेटी हूं, पर मेरे जैसे कई सारे एक्टिविस्ट हैं जो नरेंद्र दाभोलकर की ये जो वैचारिक विरासत है उसके हकदार है और उस रास्ते पे चलने वाले कार्यकर्ता है। तो ये काम खत्म नहीं हुआ डॉक्टर के कत्ल के बाद भी, और ये काम अभी चालू है और चालू रहेगा। इतना ही नहीं, बहुत सारे अंगों से ये काम विकसित भी हो रहा है।
उसमें से एक महत्वपूर्ण अंग है, वो है एंटी ब्लैक मैजिक एक्ट या जादू टोना विरोधी कानून की समाज में अमल करना। महाराष्ट्र में 7 साल हो गए ये कानून का अमल होके, और उसके तहत 600 से ज्यादा केसेस महाराष्ट्र में दर्ज हुए हैं। ये कानून के तहत अलग अलग तरीके के शोषण सामने आ गए, जैसे कि बंगाल एक प्रगतिशील समाज रहा है हमेशा, महाराष्ट्र भी खुद को एक बड़ा प्रगतिशील समाज मानता है। महात्मा फुले, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, इनके बलबूतों पे इस समाज का विचार खड़ा है, ऐसे मानने की यहाँ परंपरा है। पर यह अंधविश्वास उन्मूलन समिति के चलने से ये जो कानून आ गया देश महाराष्ट्र में, जादू टोना विरोधी कानून, उससे पता चला कि जो हम बोस्टिंग करते हैं महाराष्ट्र पुरोगामी होने का, तो हर साल महाराष्ट्र में 4-5 नरबली तो हो जाते हैं। अभी नरबली ये कितनी घिनौनी चीज है, ये कोई 17th या 18th सेंचुरी के बाद हमारे देश में घटती होगी, ये ऐसे मानने के लिए हम तैयार नहीं रहते। पर ये कानून के तहत ये पता चला कि ये इतनी रेयर चीज नहीं है, और हर एक साल इतने लोग अंधविश्वास के चलते अपनी जान गंवाते हैं। ऐसे माने जाते हैं लोगों की तरफ से कि कोई औरत है, उसकी नजर बुरी है, वो बुरी औरत है, वो डायन है, और उसे उसका कत्ल किया जाता है। इस तरीके की सोच भी बहुत रहती है। अगर कत्ल भी नहीं किया तो उसको बड़े पैमाने पर टॉर्चर किया जाता है। तो ये जो चीज हमारे समाज में चलती आई है, उसके बारे में चर्चा शुरू हुई, बहुत ज्यादा केसेस इस तरीके के सामने आने शुरू हो गए। वैसे ही औरतों का यौन शोषण करने का सुपरस्टिशन, ये एक बड़ा आसान तरीका है। जैसे कि शौहर और बीवी के नाते में ये नाते की नींव अलग तरीके की होने के कारण उस नाते में जो अंगभूत शोषण है, वो शोषण भी अलग तरीके का रहता है। तो उसी तरीके से भक्त और जो फेक गॉडमैन रहता है, जो बाबा बुआ रहते हैं, उनके जो नाता है, उनमें उनके बीच जो नाता है, वो नाता ही अलग तरीके का होता है। इसमें खुद का ब्रेन इस्तेमाल करने का कोई चांस ही नहीं रहता। इसलिए वहां उस नाते के बलबूते जो शोषण होता है, उसका तरीका भी बहुत अलग रहता है। और औरतों की जिंदगी में ये शोषण बहुत घिनौना रूप धारण करता है। ऐसे भी कई मसले सामने आ गए और वो रोके जा सके कानून के तहत। कई बार ऐसे हुआ कि ऐसी कोई केसेस सामने आ गए। समझो कि बंबई में एक बड़ा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का अस्पताल है, केईएम हॉस्पिटल करके, बहुत ही बड़ा अस्पताल है। तो उसके प्रीमाइसेस में 30 सालों से एक भोंदू बाबा अपना दरबार खोले हुए बैठा था, और जो पेशेंट्स वहां आते थे उनको लूट रहा था। तो जब हमें इस चीज का पता चला, हमने उसके खिलाफ तकरार दर्ज की और पुलिस को उसका कॉग्निजेंस लेना पड़ा। बाद में अभी तक वो बाबा फरार है, पर कानून के चलते वो अलग जगह जाके अपनी दुकान नहीं खोल सका, उसे अपनी दुकान बंद करनी पड़ी। वैसे ही महाराष्ट्र में एक जगह पूना के नजदीक एक समझो 4 साल पहले एक टोमेटो बाबा करके कोई बाबा का उदय हुआ। वो क्या करता था, वो एक लाल रंग का कोई रस लोगों को पीने के लिए देता था।
लाख दुखों की एक दवा करके, और उसे टोमेटो बाबा के नाम से लोग जानने लगे। वो इतना पॉपुलर हो गया कि 2-2 लाख लोग उसके पास जाने लगे, उसका जो दिन दरबार होता था उस दिन। तो जब महाराष्ट्र अंधविश्वास उन्मूलन समिति ने उसके खिलाफ तकरार दर्ज की, तो उस पे एफआईआर होने से पहले उसने अपने वो सब दरबार बंद कर दिए। नहीं तो क्या होता है कि हम सब ने देखा है कि आज हमारे समाज में कोई बाबा, बापू, बुआ इतने बढ़ जाते हैं, इतने बड़े बन जाते हैं कि इन्हें कोई हाथ नहीं लगा सकता। वो कानून के हाथ से बड़े हो जाते हैं। उनकी, कई लोगों को हमने ऐसे देखा है जिनकी प्राइवेट आर्मीज रहती है, जो कुछ भी करे उन्हें कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं कर सकता। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये जो अंधविश्वास विरोधी कानून है, ये अंधविश्वास नहीं है, जादू टोना विरोधी जो कानून है, ये कानून के चलते ऐसे कोई बाबा बुआ बड़ा होने के रूप में हो, उसे वही का वही रोका जा सकता है, और ये बहुत अहम बात है। तो मुझे ऐसे भी लगता है कि ये जो आज हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है, ऐसे कम्युनिकेशन के चलते आप भी सब इसके बारे में जान लो, और पश्चिम बंगाल जो एक बहुत ही प्रागतिक राज्य रहता आया है, वहां भी इस तरीके की कानून की मांग वहां के कुछ संस्थाओं ने पहले से ही चालू की है, उठाई है। तो लोगों के बीच भी इसकी आवाज बुलंद होनी जरूरी है। तो मैं आज के अवसर को इस मौके से भी देखती हूँ कि, इस मौके की नजर से भी देखती हूँ कि इस तरीके के कानून की बात आपके राज्य में भी छेड़ी जाए, बल्कि पूरी भारत में ही इस तरीके का कानून बनने की जरूरत है। तो मैंने अभी लगभग 30 मिनट हुए हैं, मैंने महाराष्ट्र अंधविश्वास उन्मूलन समिति का काम कहाँ से शुरू हुआ, उसके कौन से अंग हैं, ये जो कानून डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर ने जिसके लिए बहुत प्रयास किए, 18 साल प्रयास किए, और उनके कत्ल के बाद जो कानून जारी किया गया, वो कानून का हमारा अनुभव क्या है, ये कुछ बातें आपसे छेड़ ली। अभी मैं कुछ शब्द डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर की कत्ल के बारे में भी बोलना चाहूंगी। आज उनकी कत्ल को 7 साल पूरे हो गए हैं। पहले 9 महीने ये इन्वेस्टिगेशन महाराष्ट्र पुलिस ने किया, बाद में कोर्ट के हस्तक्षेप से ये सीबीआई को सौंपा गया। पर सीबीआई को सौंपे जाने के बाद अभी 6.25 साल हो गए, फिर भी इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हुआ है। इस दौरान जिस तरीके से डॉक्टर दाभोलकर का कत्ल हुआ था, उसी तरीके से और 3 लोगों के कत्ल हो गए हैं। आप सब जानते हो, कॉमरेड पानसरे, प्राध्यापक कलबुर्गी और पत्रकार गौरी लंकेश। ये तीनों रैशनलिस्ट लोग थे जो एक विशिष्ट तरीके का सोचने वाला समाज बनाने की कोशिश में जुटे हुए थे। ये चारों जो खून है, उनमें कॉमन लिंक है। ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने बोला है, ये रिकॉर्ड पे है। ये चारों खूनों की जो चार्जशीटें फाइल हुई है, इनमें कुछ सस्पेक्टेड अक्यूज्ड के नाम कॉमन है। तो कोई ऐसा गुट है जो इस तरीके के विवेकी सोच रखने वाले प्रभावशाली नेताओं को खत्म करना चाहता है, क्योंकि जो नहीं चाहता कि हमारे समाज में चिकित्सा का आवाज बढ़ जाए। ऐसे भी सामने आया है कि डॉक्टर दाभोलकर और बाकी के 3 लोग, ये चारों लोगों की कत्ल में 2 समान शस्त्र इस्तेमाल हुए हैं। तो 7 साल हो गए, इतनी बड़ी साजिश सामने आई है। ऐसे नहीं है कि कोई भी पकड़ा नहीं गया हो, लोग पकड़े गए हैं, साजिश का पर्दाफाश होना शुरू हुआ है।
वो सही रास्ते पे जा रहा है, पर फिर भी इसका मास्टरमाइंड कौन है? इतना बड़ा सब प्लॉट रचने वाला कोई उतना ही बड़ा होना चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। तो ये उसका पर्दाफाश अभी नहीं हुआ है और ये होना बहुत ही जरूरी है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ये 20 अगस्त को हम जब साइंटिफिक टेम्परामेंट डे मनाते हो, तो हमें ये भी जानना जरूरी है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट इतनी अहम बात है कि उसका डर इस समाज के कई तबकों को इस तरीके से लगा है कि इस तरीके की साइंटिफिक टेम्परामेंट वाली सोच फैलाने वाले लोगों से उन्हें डर है। क्या था उनके पास? डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर के पास क्या था? सिर्फ उनके विचार थे, कोई सत्ता नहीं थी, कोई पैसा नहीं था। तो जो डर है वो विचारों के बारे में डर है। और साइंटिफिक टेम्पर में, साइंटिफिक टेम्परामेंट पे बेस्ड सोच में इतनी ताकत है जो शायद भौतिक ताकत जैसी है। डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर स्पेशली युवाओं को, जब युवाओं से संवाद छेड़ते थे, तो वो जरूर एक बात बोलते थे। वो बोलते थे कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, विवेकवादी जीवन शैली से दुनिया बदल जाएगी या नहीं जाएगी ये मैं तुम्हें नहीं कह सकता, पर ये तुम्हें बिल्कुल कह सकता हूं कि तुम्हारी खुद की जिंदगी बदल जाएगी। क्योंकि अगर हम विवेकवादी ढंग से सोचे तो हमारा मन निर्भय बन जाता है। हमें ऐसा डर नहीं रहता कि मेरी जिंदगी कोई कंट्रोल कर रहा है, मेरी जिंदगी में कोई दखल दे रहा है, बल्कि हम ऐसे मानने लगते हैं कि मेरी जिंदगी मेरे हाथ में है, उसका जो कुछ भला बुरा करना है वो मैं करने वाली हूँ, और ये समाज व्यवस्था है जो उस पर प्रभाव डालने वाली है। तो उसका जो कोई करता धरता है वो मैं खुद हूँ। और ये एक तरीके का आत्मविश्वास इंसान में पैदा करता है। वो आत्मविश्वास जिंदगी की सबसे अहम भेंट रहती है। तो मैं आज ये कार्यक्रम से जुड़े हुए युवाओं से ये जरूर कहना चाहूंगी, जो मुझे डॉक्टर दाभोलकर ने बोला था, जिसका अनुभव मैं ले रही हूँ। महाराष्ट्र के हजारों युवा उसका अनुभव ले चुके हैं, और दुनिया में जो वैज्ञानिक सोच के रास्ते पे चलते हैं वो भी इसका अनुभव ले चुके हैं कि अगर वैज्ञानिक सोच से सोचो, वैज्ञानिक सोच के तरीके से सोचो, तो जिंदगी बेहतरीन बन जाती है। जिंदगी में आत्मविश्वास आता है और डर भाग जाता है। अभी कोरोना का दौर ये समझने के लिए मेरे ख्याल से सबसे अच्छा, दुखदायक है पर सबसे अहम दौर है। हमने कोरोना के काल में देखा, कोई कोरोना माता हमें मदद करने के लिए नहीं आई। कई औरतों ने पूजा की कोरोना माता की। कोई तालियां बजाना, थालियां बजाना हमारे काम नहीं आया। कोई गोमूत्र पार्टी से कोरोना का इलाज नहीं निकला। क्या काम में आया? वो है साइंटिफिक तरीके से होने वाले उपचार, की जाने वाली जांच और सरकार की व्यवस्थाएं, ये हमारे काम में आई। तो हम सबको ये जानना चाहिए कि जब हम संकट में हैं तो कौन हमारी मदद कर रहा है। जैसे हम कहते हैं ना कि फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इन डीड। तो कोरोना के संकट में भी हमें ये सोचना चाहिए कि ये संकट में मेरी मदद करने वाला कौन है। कोई बुआ, बाबा, भविष्य, ज्योतिष कोई आया है मेरी मदद करने, या विज्ञान आया है मेरी मदद करने? और विज्ञान यानी मैं कोई विज्ञान को भगवान नहीं बना रही हूँ। विज्ञान ये एक सोच है। हाथ धोना एक सिंपल सी बात है, पर अगर मुझे ये पता है, मैं वैज्ञानिक तरीके से सोचती हूँ और ये जानती हूँ कि वायरल लोड कम करना जरूरी है, तो मैं हाथ धोऊंगी।
तो वैज्ञानिक सोच, ये सोचने का तरीका मेरे काम आया है। और मुझे लगता है कि जब हम कोरोना के पश्चात के युग में जिएंगे तो हमें इस चीज का बिल्कुल ख्याल रखना चाहिए कि हमारी मदद के लिए कौन आता है। आज डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर का मेमोरियल लेक्चर हम रखते हैं, तो आज योगेंद्र यादव जी ने उस लेक्चर में अपने विचार रखे। आप जरूर मैक्स महाराष्ट्र ये फेसबुक पेज पे जाके ये विचार सुन लो। बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने एक तास कोरोना के बाद हम किस तरीके के समाज में जीना चाहते हैं और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके बारे में अपनी सोच रखी। तो हम ऐसा मानते हैं कि ये विवेक का और विज्ञान का मार्ग हमें जिंदगी की असली राह दिखाएगा। और कोरोना के संकट में हमने इसका अपनी जिंदगी वाला अनुभव लिया है। हमने देखा है कि कौन मदद करता है और कौन मदद में नहीं आता। तो इसके बलबूते हमें अपनी जिंदगी के लिए कुछ निर्णय लेने हैं और वो निर्णयों को कायम करना है। अभी मेरे विवेचन का अंत में मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि मुझे जो अंधविश्वास उन्मूलन समिति महाराष्ट्र की है उसके बारे में महत्वपूर्ण चीजें लगती थी, वो मैंने आपके सामने रखी है। अगर आपको कोई सवाल हो तो आप जरूर मुझसे वो सवाल करें, हम उसका सवाल जवाब करेंगे। और आप सबसे जुड़ने का मौका मुझे मिला। इतनी रात गए, आप 121 लोग इकट्ठे हो गए, 120 लोग इकट्ठे हो गए, आप सुन रहे हो, एंगेज हो रहे हो। और मेरे ख्याल से आप ऐसे लोग हो जो समाज में ये चीज के लिए दिलचस्पी रखते हैं। तो मेरे लिए आप रिप्रेजेंटेटिव्स हो कई और लोगों के, जिन लोगों को जाके आप ये बातें बोलना महत्वपूर्ण समझते हो। तो इसी तरीके से हम ये सोच बढ़ाएंगे। डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर को 20 अगस्त पे यही सबसे उचित आदरांजलि रहेगी कि हम विज्ञान की सोच के मार्ग पे चलने का खुद को आश्वासन दें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। आप जिस तरीके से हम लोगों को समझा रही थी अभी तक के नेशनल साइंटिफिक टेम्पर डे की मतलब क्या होती है, और एक बहुत ही बड़ी बात आप कह रही थी थोड़ी देर पहले कि डॉक्टर दाभोलकर ये कहते थे कि ये साइंटिफिक सोच से दुनिया बदले या ना बदले, पर आपके अंदर की जो डर है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी और आप एक अच्छी जिंदगी जी पाएंगे। ये मुझे ये लग रहा है कि आज अपने जो स्पीच दी है और आज की ये पूरे दिन का शायद सबसे बड़ी सीख हम लोग के लिए कि साइंटिफिक टेम्पर हम लोग को क्या दे सकती है और क्या नहीं दे सकती है। Thank you so much, ma'am. We'll open the session for the question answer round. Already we are having lot many questions for you. We are having lack of time, so I'll just select few questions and I'll ask it to you. From Shipra Sharkar, we are having a question. What is the attitude of the state government towards Maharashtra Anthashraddha Nirmulan Samiti? Did you face any kind of difficulty to run these things and all? No, actually it's a social movement in Maharashtra, so its voice is heard now. And today, for example, today Home Minister, Chief Minister, and many more political leaders of Maharashtra have tweeted for remembrance of Dr. Narendra Dabholkar. But like it is always there, na? When you want to challenge the status quo in the society as he has wanted, तो सत्ता से संघर्ष तो थोड़ा बहुत चलता ही है, पर ऐसी बात नहीं है कि हमेशा स्टेट की तरफ से विरोध ही हुआ है और ऐसी भी बात नहीं है कि हमेशा स्टेट की तरफ से सहयोग ही हुआ है। ये मूवमेंट का काम है कि ये स्टेट को कुछ चीजें सामाजिक न्याय की
करने को मजबूर करे, और ये महाराष्ट्र अंधविश्वास उन्मूलन समिति करती आई है। और वो स्टेट का रिस्पॉन्स अलग अलग रहा है, अलग अलग स्टेट्स में। तो ये एक इस तरीके का रिश्ता है जहाँ विरोध भी होता है, जहाँ मदद भी होती है, और ये सोशल मूवमेंट का काम ही है कि जो हमें जिस तरीके का बदलाव समाज में चाहिए, उसके लिए हम स्टेट को कन्विंस करें। हम अगर वो स्टेट नहीं कर रहा है तो उसका विरोध करें और हमारा मुद्दा उठाए रखें, ऑफ कोर्स संवैधानिक मार्ग से। Next question we are having from Dr. Shatabdi Ghosh. She is asking, Madam, during the menstrual cycle, females are not allowed to enter the religious spaces. Is there any legal step to stop this kind of superstition? Actually, a lot of debate went over Sabrimala temple, and now it is pending in Supreme Court, if you know. So the issue is being debated, and not only in case of Hindu temples, ऐसे ये जो शबरीमला केस शबरीमला केस का जो मुद्दा है, वो और सारे धर्मों के मुद्दे से भी क्लब किया है सुप्रीम कोर्ट ने। जैसे खतना की प्रथा है दाऊदी बोहरा समाज में, तो औरतों को कम समझना और उनको वो उस धर्म की है इसके हिसाब से उन्हें एक तरीके से अलग तरीके से ट्रीट करना। तो अभी तो ऐसा कोई कानून नहीं है, पर सबरीमला टेम्पल का जो मुद्दा जब सामने आएगा तो मेरे ख्याल से ये बात सुलझ जाएगी। पर महाराष्ट्र में एक ऐसा मंदिर रहता था शनि शिंगणापुर जिसका नाम था, उसके लिए महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने आंदोलन छेड़ा था कि महिलाओं को उसमें प्रवेश होना जरूरी है। तो तभी उसके चलते, आंदोलन के चलते एक कानून के तरफ सबकी नजर गई जो महाराष्ट्र में था कानून, जिसको सब भूल गए थे, और वो कानून था कि धर्म स्थलों पर किसी भी व्यक्ति के बीच भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो महाराष्ट्र में ये एक जो मंदिर के बारे में प्रथा थी वो खत्म हो गई। मेरे ख्याल से पूरे देश में इस तरीके की इस तरीके की सोच किस तरीके से उभर के आए, ये शबरीमला टेम्पल के बाद पता चलेगा। पर मेरे लिए महत्व इस बात का भी है कि अभी जवान लड़कियां हैप्पी टू ब्लीड जैसी कैंपेन करती है, वो ये मानने को तैयार नहीं है कि वो मेंस्ट्रुएशन के चलते इम्प्योर हो जाती है। तो ये जो मुद्दा है ना, वो पहले प्रश्न से जुड़ा हुआ है कि हम एक चीज मानते हैं तो स्टेट को हम उसमें बिलीव करने के लिए और उस पे उसके चलते निर्णय लेने के लिए हमें स्टेट को कन्विंस करना है, स्टेट को मजबूर करना है एक तरीके से। तो ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में जो अंधविश्वास चलता आ रहा है उसके बारे में भी ये जरूरी है, और ये होने की शुरुआत हुई है मेरे ख्याल से। जी बिल्कुल सही, सोच कहीं ना कहीं से शुरू होनी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग फ्रॉम हिमाद्री दास. He is asking how much change in scientific temperament after Narendraji's death. What is the role of science organization to fight against superstition? What is the role of school or college on it? सो मैम आप ये क्वेश्चन के आंसर दें उसके पहले मैं एक छोटी सी बात इसके साथ जोड़ देना चाहती हूँ। जैसे कि आप बता रही थी कि आप स्कूल के बच्चों, वो लोग अपने घर में जाके पेरेंट्स के साथ जाके बात करें और साइंटिफिक टेम्परामेंट बढ़ाए, अपनी पिता माता से बात करें इस बात को लेके, ये सब को लेके आप काम करती है। मेरी एक एक्सपीरियंस है, ऐसे बहुत सारे बच्चों के हाथ में, मैं जब स्कूल में कैंपेन के लिए जाती हूँ, साइंटिफिक टेम्परामेंट को लेके बात करती हूँ, उन लोगों के हाथ में भरी हुई वो ज्योतिष की अंगूठियां होती है, वो रिंग्स रिलेटेड टू एस्ट्रोलॉजी। मैं एक बच्चे से पूछी थी, बेटा आप ये क्यों पहनते हो? वो बच्चे ने मुझे बहुत ही एक सोचने वाली क्लू दी थी। वो बच्चे बताई थी कि मैम मेरी साइंस में मार्क्स बहुत ही कम आते हैं और फ्यूचर में आईआईटी और ज्वाइंट वगैरह वगैरह में जाने के लिए साइंस में मार्क्स लाना बहुत ही जरूरी है। तो मम्मी पापा एस्ट्रोलॉजर से बोल के मुझे ये पहना है कि मुझे साइंस में मार्क्स ज्यादा आए।
तो ये चीज मुझे बहुत ही सोच में डाली थी कि कैसे कैसे साइंस को यूज किया जाता है और सोच कहाँ पर पड़ी हुई है हमारी। तो अगर आप इस पे कुछ अपने विचार डालें तो जी। बिल्कुल। मैं एक डॉक्टर दाभोलकर की वाक्य बताना चाहूंगी। वो कहते थे कि मैं जिस काम के क्षेत्र में हूँ वहाँ सक्सेस सालों में नहीं तो डेकेड्स में या शतकों में गिना जाएगा। सालों में सक्सेस नहीं आएगा, डेकेड्स में या शतकों में सक्सेस आएगा। तो ये हमें बिल्कुल याद रखना है कि जो बदलाव आने का काम है वो हमें करते रहना चाहिए, और उसमें बच्चे बहुत अहम हैं। महाराष्ट्र अंधविश्वास उन्मूलन समिति बच्चों के लिए वैज्ञानिक, जिसे हम बोलते हैं वैज्ञानिक जाणीवा प्रकल्प, यानी वैज्ञानिक तरीके की सोच के बारे में बच्चों को स्कूल में जाके बताना, इस तरीके का काम हम करते हैं। और बड़े पैमाने पे हम स्कूलों में जाते हैं, कई थाउजेंड स्कूल्स में जाते हैं, टीचर्स का ट्रेनिंग करते हैं, बच्चों को मिराकल्स कैसे करते हैं वो सिखाते हैं। तो एक और भी चीज़ करते हैं बच्चों के साथ। दिवाली में हमारे यहाँ बहुत पटाखे फोड़ते हैं। तो दिवाली के समय स्कूलों में जाके बच्चों से प्रॉमिस लेते हैं कि वो इस साल पटाखे नहीं फोड़ेंगे और अपना पटाखों पे जो पैसा खर्च करने वाले हैं वो बचाएंगे। और ये जो एक्टिविटी है वहाँ हम क्या करते हैं कि हर एक बच्चे को अपने घर से एक फॉर्म भर के लाना होता है, उस पे पेरेंट्स का सिग्नेचर रहता है। तो घर में और बच्चे का सिग्नेचर रहता है कि मैं इस साल 200 रुपए बचाऊंगा, 300 रुपए बचाऊंगा। और हम ये जो प्रोमिसेस हम कलेक्ट करते हैं उसका टोटल करते हैं, तो कुल हमें समझो 14-15 करोड़ के प्रोमिसेस मिल जाते हैं महाराष्ट्र में हर साल। तो इतने सारे बच्चों के माँ बाप से भी इस बात पे चर्चा होती है, बच्चों के और माँ बाप के बीच ये चर्चाएं चलती रहती है। तो ये तरीके हैं बच्चों के साथ बात छेड़ने का। युवाओं के साथ बात छेड़ने का अलग तरीका है, जिसमें पथनाट्य एक अहम भूमिका बजाता है। और ये गाने जो गाने के गानों के माध्यम से उनसे संवाद छेड़ा जा सकता है। तो ये सारे माध्यम हम इस्तेमाल करते हैं। और जैसे कि आपने पूछा कि नहीं, मैं पहला वाला सवाल का लिंक मैं शायद मिस किया मैंने। व्हाट शी हैड आस्क्ड, व्हाट ही हैड आस्क्ड। हेलो। Yes, he had asked. Yes, ma'am. हाँ He had asked like नरेंद्र जी के डेथ के बाद क्या साइंटिफिक हाँ ऑर्गेनाइजेशंस ज्यादा सक्रिय हो चुके हैं और साइंटिफिक टेम्परामेंट क्या ज्यादा बढ़ गया है, ऐसा कुछ लगता है आपको? तो हाँ, तो वो ऐसे है कि ऐसे इट्स नॉट, ऐसे नहीं है कि ये कोई अलग तरीके से दृगोचर हो समाज में, इस तरीके से नहीं बोल सकते। पर एक बात जरूर है कि ये सोशल मूवमेंट 30 साल से चल रहा है महाराष्ट्र में, और उसके चलते ये अभी ये संवाद छेड़ा हुआ है समाज में। तो ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, महाराष्ट्र अंधविश्वास उन्मूलन समिति छोड़ के भी जो साइंस कम्युनिकेटर्स है वो भी है जो ये मुद्दे उठाते हैं। और डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर के बच जाने के बाद बहुत सारे लोगों के मन में भी इसका इम्पैक्ट हुआ है और वो सोचने पे मजबूर हुए हैं, ऐसे भी लगता है। पर फिर मैं ये दोहराना चाहूंगी कि ये ऐसे कोई सालों में होने वाला काम तो है नहीं। ये चीज हम सबको मन में रखना जरूरी है। जी। और एक शायद हम लोग के पास समय की बहुत कमी है, जी इसलिए शायद ये सेशन की मैं आखिरी क्वेश्चन पर जाना चाहूंगी। That is question from Sohini Basu. She is asking, how far are you hopeful that the post-COVID era society will become more scientifically, more oriented to science? Do you feel that superstition और ये जो faith है बाबा लोगों के ऊपर और या करुणा माता वगैरह वगैरह जो भी हो अभी सुनने को आ रहा है, तो ये सब को क्या लोग छोड़ देंगे? क्या कोरोना से ली हुई ये जो शिक्षाएं हैं ये क्या हम लोगों के बीच कोई रेवोल्यूशन लाने वाला है पोस्ट कोविड एरा? व्हाट डू यू थिंक मैम? मैं ऐसे आशा रखना चाहती हूँ, पर मैं ऐसा विश्वास नहीं जता सकती।
ये मेरा इसके लिए आंसर होगा। और अंधविश्वास का छोड़ो, अगर हम पब्लिक हेल्थ सिस्टम का भी सोचे कि हमने सबने एक्सपीरियंस किया कोरोना के काल में कि पब्लिक हेल्थ सिस्टम में गवर्नमेंट का होना कितना ज़रूरी है। पर क्या हम कोरोना के बाद ये मांग जारी रखेंगे? तो हम सब ने आज तक ये एक्सपीरियंस किया है कि लोग भूल जाते हैं, पर मेरे ख्याल से हमारा यही काम है कि हम लोगों को याद दिलाते रहे कि कौन आपकी मदद में आया था, हु वाज योर फ्रेंड इन नीड। तो ये एक निरंतर चालू रहने वाली प्रक्रिया है। ये मानने से साइंस कम्युनिकेटर्स को कोई छूट नहीं है मेरे ख्याल से। हमें ऐसे कोई मौके शायद ही मिले जिंदगी में कि जहां हमें एकदम सा बदलाव देखने को मिले, नहीं तो ये ग्रेजुअल प्रोसेस ही होने वाला है इवन आफ्टर कोरोना। जी जी, बिल्कुल ये सही बात है। कोई एक दिन या एक रात में बदल जाने वाली बात तो है नहीं। हम लोग कोशिश करते रहेंगे लोगों के अंदर ये बात, और इस तरह से जिस तरह से आप कम्युनिकेट कर रही है, उस तरह का कम्युनिकेशन जितना बढ़ता जाएगा शायद उतना ही लोग समझ पाएंगे, सोच पाएंगे क्या कि साइंटिफिक टेम्परामेंट की महत्व क्या होती है। और खास कर से मैं एकदम अंत में आपकी दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि लाइक आप आज के दिन के, खास करके जिस दिन आपके पिता चले गए थे, उसी दिन आप इतने अच्छी तरीके से ट्रिब्यूट, होमेज दे रहे हैं उनको, और वो भी इस सिचुएशन में। इट्स अ ह्यूज courageous थिंग फॉर ऑल ऑफ अस टू लर्न फ्रॉम यू कि हाउ टू कम्बैट विद द सिचुएशन, और उनके जो सोच है, विचार है, उसको किस तरह से आगे लेके आप जा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच हम लोगों के साथ जुड़ने के लिए और इतने सारे चीजें हम लोगों को सिखाने के लिए। इवन आई वुड लाइक टू थैंक all of you for participating in today's webinar. We hope to see you again next time. And over to you, Dr. Banerjee. Thank you, Professor Gokul Simani. Thank you, Mukta Davelkar ji, for a wonderful session. Am I audible? Yeah, Yes, sir. You are audible. Yes, sir. You are audible. Thank you, Mukta ji, for a wonderful session. I would like to request Dr. Shampa Devnath, our IQAC coordinator, Vijaygarh Jyotish Rai College, and associated professor, Department of Microbiology. Please, madam, I would like to request vote of thanks. Before that, I would also like to thank you all for joining and sitting through. Thank you very much. Shampadi, please. Dr. Shampa Devnath. Hello. Thank you, Arnav. Now we have come to the end of the session. Our honorable speaker has enriched us by her wonderful explanation. She shared many of her experience to remove the superstitious belief of her life. On behalf of IQAC Vijaygarh Jyotish Rai College, Dr. Shampa Devnath, I would like to thank our honorable speaker for her interesting and valuable speech. Thank you, madam. I would like to express my heartfelt thanks to our principal madam for her constant support to organize the webinar. I would like to thank our participant faculties and our students, my beloved colleagues, as without them the webinar is meaningless. Last but not the least, I would like to thank or like to express my gratitude to the Department of Journalism and Mass Communication and Science Innovation Center of Vijaygarh Jyotish Rai College and Creative Science Club, Kolkata. Thank you to all of you. Good night.
Now, Dr. Arno, Yeah. would you like to Thank say you, something? everybody. Thank you, madam. Thank you, everybody. Thank you. Thank you, Mukta ji. See you.